Hello, students. Welcome back to Maths Made Easy. Let us continue with our ninth standard ICSE series, and we will continue with the rational number. This is a lecture 2 of the rational and irrational numbers. So let us continue with exercise 1A, question number 2. That is, they're asking us to convert each of the decimal number into the fraction. So how to do that? We are going to check first step. Let us first write the given sum as it is, and then we will be going to check after decimal point कितने digits है. तो after decimal point कितने digit है? 1, 2. तो अगर after decimal point 2 digit है, तो हम 2 जीरोस डिनोमिनेटर में लिखेंगे. अब इसका मतलब क्या हुआ? 2 जीरोस हम डिनोमिनेटर में, तो 2 जीरोस का मतलब है कि अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम डिनोमिनेटर में 2 जीरो यानी 100 लिखेंगे. अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1000. अगर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो हम डिनोमिनेटर में एक जीरो यानी लिखेंगे 10. अंडरस्टूड? So here in the first question, it's 0.65. Okay. So point के बाद कितने digit है? 2. तो हमने लिखा denominator में 100. So that is numerator में as it is the given number without the decimal, that is 65. Denominator में आएगा 100. Now 65 upon 100, can we reduce it further? Because the final answer should always be in the simplest form. तो इसको आगे ये इसमें कोई same common factor है क्या? So the answer is है. The common factor is 5. So we will reduce it by the table of 5. तो ये हमने 100 को कट किया, लिखा 5 into 20. 65 is nothing but 5 into 13. Further 13 or 20 may. Do we have any same common factor? Answer is no. So this becomes our final answer. Okay. Now we will go to the third question. 0.075. Decimal point के बाद कितने digit है? 1, 2, 3. 3 digit है. तो denominator में कितने zero आएंगे? 3. यानी लिखना क्या है? 1000. तो हमको fraction क्या मिलेगा? 75 upon 1000. ये आगे reduce होगा? हाँ होगा. 5 के टेबल से 5 into 15 and 5 into 200. फर्दर ये reduce होगा? हाँ होगा. 5 into 3 and 5 into 40. तो हमको फाइनल आंसर मिला 3/40. इसमें कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं. सो दिस इज अवर फाइनल फ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 5. 1.732. पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1, 2, 3. सो डिनोमिनेटर में हमको क्या लिखना है? 1000. इसको हम आगे रेड्यूस कर सकते हैं? यस कर सकते हैं. 2 के टेबल से 2 into 500 and 2 into, अब इसको हमने कैसे रेड्यूस किया है? 2 8 16, 1 कैरी, 2 6 12, 1 कैरी, 2 6 12. क्या मिला हमको? 866 upon 500. इसमें कोई कॉमन फैक्टर है? आंसर इज यस. द कॉमन फैक्टर इज 2. सो 500 is 2 into 250 and 866. 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 3s are 6. उसके बाद का फ्रैक्शन क्या मिला हमको? 433 upon 250. क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर है? आंसर इज नो. तो ये हो गया अपना फाइनल फ्रैक्शन. So this is the way you are going to convert the given decimal into fraction. If you have any doubt in this particular concept, do text me. I will get back to your doubt immediately. Now let us move forward to question number 3. Question number 3 में करना क्या है? Fraction दिया है, decimal में convert करना है. Now let us start with the first question. 1 upon 8. Now 1/8 को, इससे पहले हमने previous lecture 1 में क्या देखा था? How to identify whether the given fraction is a terminating, will give us a terminating decimal or non-terminating. So the denominator should be in the form of 2 raised to something and 5 raised to something. Okay, so we are going to use that technique here. हाँ, हम directly long division नहीं करेंगे, हम technique use करेंगे. हम देखेंगे डिनोमिनेटर को 2 या 5 के फैक्टर में हम लिख सकते हैं क्या. तो यहाँ डिनोमिनेटर 8 है, तो 8 को हम 2 के फैक्टर में लिख सकते हैं. आंसर इज यस. 8 is 2 raised to what? So 8 is 2 cube. अच्छा, अब यहाँ 5 तो है नहीं, तो क्या हुआ? हम लेकर आएंगे 5. कैसे लेके आएंगे? सो इट इज 1 upon 2 cube. तो हम
यहाँ we are going to write here into 5 with the same power. 2 का पावर है 3, तो हमने 5 को भी पावर दे दिया 3. नाउ कैन वी डू दिस? आंसर इज नो. हम किसी भी दिए हुए सम को सिर्फ एक ही साइड में मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसका ओवरऑल वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. तो अगर हमको कुछ मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, वी ऑलवेज डू इट ऑन बोथ दी साइड. And when we talk about fraction, the both the side is the numerator and the denominator. So if we have multiplied something in the denominator, the same should be multiplied in the numerator. So कर क्या रहे हैं हम कर रहे हैं into 5 cube both in the numerator and the denominator. अब इसका डिनोमिनेटर हम ऐसा लिखेंगे 2 into 5 जो कि होता है 10 और साथ में पावर दे दिया हमने 3. अब इसमें एक्चुअली मैंने एक स्टेप स्किप किया है, ये आई विल राइट दैट स्टेप एंड शो यू. इसको हम साथ में लिख सकते हैं ऐसे 2 into 5 द होल क्यूब. हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस में एक लॉ पढ़ा था, दैट वाज a raised to m into b raised to m is equal to a into b the whole raised to m. तो अगर बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर सेम है, हम दोनों बेस को एक ही साथ सेम पावर रख कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो वो लॉ हमने यहाँ यूज किया है. ओके, न्यूमरेटर सॉल्व करो. 5 क्यूब क्या होता है? 5 into 5 into 5, दैट इज 5 5 are 25, 25 into 5 is 125. तो इसको सॉल्व करो. 5 क्यूब का वैल्यू हमने लिख दिया 125. 1 into 125 क्या होता है? 125. 2 into 5 is what? 10. So 10 is nothing but what? 10 cube. ओके, अब इसको आगे लिखेंगे हम 125 10 क्यूब मतलब क्या? 1000. अब सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सम नंबर 2 में अप्लाई किया था. और वो क्या है? वो है, हमने देखा पॉइंट के बाद डिजिट कितना है. तो if there are 2 digits we write 20, that is 100. अब इसका उल्टा करना है हमको. ओके, अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 100 है तो मतलब इन द गिवन न्यूमरेटर फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट, पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा. तो ये लॉजिक फॉलो करते हुए कितने जीरोस है? देयर आर 1 2 एंड 3. सो इन द डिनोमिनेटर कितने जीरोस है? 3 जीरोस है. तो 125 फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट, पीछे से 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट. सो दिस इज द फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, यहाँ आएगा डेसिमल पॉइंट. ओके, तो ये हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में. तो हम लिखेंगे, ये हो गया फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट एंड देन पॉइंट. अब पॉइंट के आगे हम जगह ऐसे एम्प्टी रखते नहीं है, तो हमको लिखना होता है 0. पॉइंट के पहले का जो 0 है उसका वैल्यू कुछ भी होता नहीं है. So this we converted 1/8 in a decimal number, that is 0.125. Okay, let us move on to next question, that is question number 2. And question number 2 is 3/32. अब 32 को 2 के फैक्टर में लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं. दैट इज 2 raised to 5. नाउ यू विल टेल मी कि मैम हमको कैसे पता चलेगा कि हम नंबर को किसी फैक्टर में लिख सकते हैं क्या नहीं? तो इसको प्राइम फैक्टराइज करके देखना है. अगर तो आपको नहीं पता, इफ यू गेट कंफ्यूज, तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइज करना है. दिस इज 2 into 16 हो गया, फिर 2 into 8 हो गया, फिर 2 into 4, देन 2 into 2 एंड 2 into 1. तो अब हम देख सकते हैं कि 32 के सारे फैक्टर्स जो है 2 है, और कितने टाइम आए? 1 2 3 4 5. मतलब 32 इज नथिंग बट 2 raised to 5. अंडरस्टूड? चलो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं. अब इसमें हमको चाहिए नंबर 5. हम कैसे लेके आएंगे नंबर 5? हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 5 with the same power 5. 5 raised to 5, 5 raised to 5. पावर 5 क्यों लिखा? बिकॉज 2 के पास जो पावर है वही पावर लिखते हैं हम. ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे. 3 into, ना 5 raised to 5 का हमको अलग से वर्किंग करना होगा. तो 5 into 5 into 5 into 5, ऐसे 5 टाइम 5 लिख दिया हमने. 1 2 3 4 5. चलो 5 into 5 क्या होता है? 25. अगेन 5 into 5 क्या होता है? 25. ये रह गया 5 अकेला. 25 into 25 क्या होता है? 625. ये रह गया 5 अकेला. इसको मल्टीप्लाई करेंगे.
5 5s are 25, 2 carry. 5 2s are 10, 11, 12, 1 carry. 5 6 are 30 plus 1 31. So we got 3125. 3 into 3125 the whole divided by, अब हम ये दोनों 2 और 5 को साथ में लिखेंगे, पावर एक साथ ब्रैकेट के बाहर देंगे. So this is 3 into 3125. So let us multiply. ये रफ वर्क हम इरेज कर देते हैं. Let us multiply 3 into 3125. Okay. So 3 5s are 15. 1 carry. 3 2s are 6 plus 1 7. 3 1s are 3. Then 3 3s are 9. The whole divided by 10 raised to 5. ये 10 raised to 5 का मतलब क्या है? कितने zeros रहेंगे? 5 zero. So if you want to write it as the 5 zeros, 1 lakh, you write it. Otherwise you can skip it. You can directly write the decimal. तो पीछे से 5 digit के बाद तो ये हो गया 5 7 3 and 9. तो ये हो गया 1 2 3 4. पांचवा है नहीं, हम लिखेंगे 0 and then decimal point. तो जब ऐसे डिजिट मिसिंग, जब डिजिट नहीं हो हमारे पास, कम पड़ जाए, तो इस तरीके से हमको 0 लिखना है. 1 2 3 4 5 पॉइंट, पॉइंट के आगे हम खाली रखते नहीं है. तो अब ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. अब द नेक्स्ट डाउट इज, क्या हमको डिनोमिनेटर हमेशा 2 और 5 के फैक्टर में मिलेगा? आंसर इज नो. मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है. जैसे कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है 44 डिवाइडेड बाय 9. अब 9 तो होता है 3 into 3. वहां तो ना 2 आया ना 5 आया. 9 is not doesn't have the factor of 2 and 5. ओके, तो अब क्या करेंगे? तो अब करना कुछ नहीं है, इसको हमको सॉल्व करना है लॉन्ग डिविजन में. लॉन्ग डिविजन मीन्स हम इस तरीके से 44 को 9 से डिवाइड करेंगे. ओके, अब चलो स्टार्ट करते हैं. 9 5s are 45. तो हम जाएंगे, 45 is a bigger number than 44. तो उसका ऊपर वाला नंबर 9 4s are 36. इसको माइनस करते हैं तो 4 हो जाएगा 14, और ये 4 से 1 उधर गया तो ये एक कम हो जाएगा. 14 minus 6 is 8. 3 minus 3 0. कोई नंबर है नीचे लाने के लिए? नहीं. तो अब आएगा डेसिमल पॉइंट और यहाँ हम लिखेंगे 0. 9 9s are 81. So 9 8s are, so 9 8s are 72. 80 minus 72 is 8 again. 8 यहाँ रेकर हो रहा है, 80 80 यहाँ रेकर होगा, मतलब 4.888888 एंड सो ऑन इसका आंसर होगा. क्योंकि फैक्टर 2 और 5 में नहीं है, बहुत ही क्लियर कट है कि ये टर्मिनेटिंग हो ही नहीं सकता है. टर्मिनेटिंग होने के लिए डिनोमिनेटर या तो सिर्फ 2 का फैक्टर होना चाहिए, या सिर्फ 5 का फैक्टर होना चाहिए, या दोनों 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए. 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर आ गया, मतलब वो इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल. सो इसका आंसर लिखेंगे हम 4.8. रिपीट हो रहा है, 8 के ऊपर डैश डाल देंगे. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. अंडरस्टूड. सो इसमें कितने टाइप के फ्रैक्शंस आएंगे? इसमें ऐसा फ्रैक्शन आएगा जहां डिनोमिनेटर सिर्फ 2 का फैक्टर होगा, जहां डिनोमिनेटर सिर्फ 5 का फैक्टर होगा, और जहां डिनोमिनेटर 2 और 5 का फैक्टर होगा ही नहीं. तो सिर्फ 2 का है तो हमको करना है इंटू 5, सिर्फ 5 का है हमको करना है इंटू 2. पावर जो ऑलरेडी पहले वाले को है वही हमको दूसरे वाले को देना है. और अगर 2 और 5 का फैक्टर नहीं है तो हम करेंगे लॉन्ग डिविजन मेथड. होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द मेथड्स. आज ये लेक्चर 2 में हमने क्या सीखा? हमने दो चीज सीखे. पहला हमने सीखा कि दिए हुए डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा हमने सीखा कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सो द रिमेनिंग सम्स व्हिच वी हैव नॉट सॉल्व्ड, आई वांट यू टू प्रैक्टिस दोस सम. इफ यू हैव एनी डाउट इन दोस सम, you can write those doubt and I will get back to your doubt. And if you have liked the video, understood what I have taught, and yet still not subscribed, kindly subscribe it and share it with your friends, because ज्ञान बांटने से बढ़ता है. We will, and there is a weekly session, students. There is a weekly session. So let me make this clear that you will get 9th standard ICSE lecture. Mostly you will get it
every Wednesday 9:30 p.m. But if I feel that the portion, your exams are coming nearby and our portion is remaining, I have to teach you many things, or if you have some of the other chapters that you have in the exam and you want the lecture for it, then please write in the comment section. Let me know. I am there always to help you for your exams, and we will very soon meet for lecture number 3. Till that, enjoy learning. Happy learning to you all. Bye.